हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ क्वेश्चन क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 5 ਤੇ 6 ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ क्वेश्चन ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ क्वेश्चन 5th ਕੀ ਹੈ, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀ 1/17 ਇਸ ਦੀ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਸੀਮਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਨੂੰ 17 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ। ਦੇਖੋ 1 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ 17 ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ। ਹੁਣ ਰਕਮ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਵਟ ਕੈਨ ਬੀ ਦ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਜਿਟਸ ਇਨ ਦ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਬਲੋਕ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 17 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਮਾइंडर ਦੁਬਾਰਾ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ 0.09 ਉੱਪਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੰਬਰ। ਇਹ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਬਲੋਕ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਹੈ, 2। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਨੂੰ 17 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਬਲੋਕ ਬਣੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਆ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ 1 ਨੂੰ 17 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। डिवाइड में रेड पेन ना कर देना, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। ठीक, देखो पहला 17 में 1 ना करेंगे 0 तो जाएगा, 1 आ गया। हूँ उतारन लिए कुछ नहीं है, नीचे इतने लगेगा पॉइंट, इतने लग जाएगी 0। हूँ 17 में जरूर दोबारा करेंगे, 17 का टेबल 10 भी नहीं आता, 10 छोटा है तो ऐसे की करेंगे, फिर 0 तो जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा। 10 हूँ की उतारेंगे 0। ठीक, ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 17 ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ 17 ਦਾ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 20 ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਮਾਈਂਡ 'ਚ 20 ਦਾ ਟੇਬਲ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 100 ਲੈਣਾ ਹੈ। 25 ਦਾ 100 ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ 20 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੇ 100 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ 17 5 ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 5 ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇ ਅੱਛਾ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। 100 ਚੋਂ 85 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 15 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ, ਦੇਖੋ ਰਿਮਾइंडर 15 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ 0 ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਾਂ 0 ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਚਲੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਥੋੜਾ ਬਰੀਕ ਲਿਖ ਲਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ 150 ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 17 ਦਾ ਟੇਬਲ ਅਗਰ 17 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 170 ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ, 10 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 9 ਨਾਲ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। 8 ਪਹਿਲਾਂ 20, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 17 ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਂਡ 'ਚ 20 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਅਗਰ ਮੈਂ 20 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਇੰਟੂ ਕਰਾਂ, 9 ਟੂ ਦਾ 18, 180 ਹੋ ਗਿਆ। 180 ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ 150 ਨਾਲੋਂ। 8 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, 8 ਟੂ ਦਾ 16, 160। 160 ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਹੈ ਇਸਦੇ। ਔਰ 7 ਲੈ ਕੇ 140। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 20 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 140 ਆ ਰਿਹਾ। 140 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ 20 ਨੂੰ ਅਗਰ 8 ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 160 ਆ ਰਿਹਾ। 160 ਇਹਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ 17 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, 8 ਨਾਲ। 8 7 ਦਾ 56, 136। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 17 ਦਾ ਟੇਬਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦਾ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ। 0 ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ 140। 14 ਆਇਆ ਸੀ, 0 ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ 14 ਆਇਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ 20 ਲੈ ਕੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ 20 ਰੱਖੋ। 27 ਦਾ 140 ਹੁੰਦਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ 7 ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। 21 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। 21 ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਮਾइंडर 17 ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ 8 ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਹੀ 8 ਤੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ। देखो हुणी 8 ਤੇ ਕੀਤਾ 136, दोबारा 8 ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ 136। 4 ਆ ਗਿਆ, ਲੱਗ ਗਈ 0। ਹੁਣ 40 ਹੈ, 17 टू द 40 थोड़ा ब्रेक लिखते हैं, काफ़ी लंबा जाएगा। 40 17 टू द 34, 6 आ गया, 0 लग जाएगी।
17 3 ਦਾ 51, चलो सीधे आ जाओ। जीरो लग जाएगी, ठीक है। इसमें एक बार 5 तो ट्राई कर लो। फाइव आ गया, फिर जीरो लग जाएगी, ठीक। 2 तो जाएगा 34, मैं थोड़ा इधर कर लेना। 1 6 आ गया, तो लग जाएगी जीरो, ठीक। ठीक है, नाल नाल चेक करते जाओ, ठीक हो रही है। से 160 आ गया। हुण 160 आप करेंगे, देखो 17 किन्ने ते जाएगा 160, 17 10 का 170 हुंदा, तो 9 ते ट्राई कर लेंगे आप। सेवन आ गया, जीरो लग जाएगी। फोर ते ट्राई करते हैं। रिमाइंडर आया 2, ये तो काफ़ी लंबा जाएगा, ठीक है। इसे लग जाएगी जीरो। 17 1 जा, मैं थोड़ा 17 1 दा 17 इतने आ जाएगा 3। मैं आ वाली चीज़ हूँ इतने लिख लेना जी। 3 आ गया ना, 3 के नाल लग जाएगी जीरो। इतने लिखता मैं 30 आ रहा है साढ़ा, है ना। 30 17 1 का फिर 1 आ जाएगा, इतने उतों इधर कर ले मैं 17 1 का 17, इधर आ जाएगा 3 1, 13 आ जाएगा, 13 के पीछे लग जाएगी जीरो, ठीक। हूँ देखना आप किन्ने दी जाएगा। सत्त ट्राई कर लें, सत्त पहला किया ट्राई नहीं। एट ते 136 आया सी साडा, ते 7 ते करते हैं आप। इलेवन, फिर जीरो लग जाएगी। पहला फटाफट कर लें, फिर आप चेक करेंगे अगे आंसर, ठीक है जी। हूँ फिर 7 ते भी चले गया। हूँ आप ट्राई करेंगे, देखो 7 ते गया, हम 6 ते ट्राई कर लें। एक 102, फिर जीरो लग जाएगी, ठीक। हूँ 4 ते ट्राई करते हैं। 68, 12 आ गया, ठीक। हूँ फिर जीरो लग जाएगी। वन 20 इतने कितने आया सी नहीं, 120 नहीं आया। आप ये भी देखना भी दोबारा, अगर दोबारा 1 आएगा ना रिमाइंडर, उदो रिपीटिंग शुरू होएगी, उदो आप रोक देना। हूँ एक बार आप इस दोबारा चेक कर लिए 120 कि टेबल पर जाएगा, ठीक है। 7 ते ही जाएगा 119, ठीक है। 7 ते आप पहले किया है, देखो हूँ कि आ गया 1। देखो इतने तक साडा सवाल कंप्लीट हो रहा जी। आप ध्यान ना देखिए, एक तो शुरू किया दोबारा एक आ गया, मैं जीरो लाऊंगा, फिर 10 बन जाएगा, फिर 2 जीरो लाने पैनी, ये सारी चीज़ रिपीटिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। हूँ इस उपर आप लाइन मार देंगे, 1 आ गया रिमाइंडर, तो आप अगे इनू करांगे नहीं। इसका आंसर इतने लिख दें आप, आंसर ब्लैक पेन नाल लिख देना 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 0 0 पॉइंट। उन्हें सारे रिपीट हो रहे हैं, देखो जी ये रिपीटिंग ब्लॉक बन गया। उन्होंने यही पूछा भी व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक। रिपीटिंग मतलब रिपीट वाली लाइन बार के नीचे, ये सारा रिपीटिंग ब्लॉक है। पॉइंट डेसिमल तो बाद किन्ने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स है, चेक कर लिए 1 2
16 आ गए, 16 है आंसर चेक कर लेंगे पिछे तो फिर आप देखेंगे अगे। ठीक है, फिर मैं लास्ट लाइन आप की लिखनी है मैं तुहानू दस दिना। सिक्स फोर सैवन, हाँ जी ठीक है जी। हम लास्ट में उन्होंने जी चीज़ मेन है वो पूछी आ दसांगे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक is 16. The maximum number of digits in the repeating block is 16। तो समझे गए हैं तो अपन सिर्फ डिजिट दसने सी कि किन्ने आएंगे। वैसे देखो सिंपल डिवीजन तुसीं आप भी ट्राई कर लेना तो थोड़ा टाइम उस पर ज़्यादा लग गया। 1 ਨੂੰ 17 ने डिवाइड ही किया। रिपीटिंग ब्लॉक मीनस अगर दोबारा रिमाइंडर 1 आ रहा है साढ़ा इतने रिमाइंडर 1 आ गया सी, रिमाइंडर 1 आ रहा है इट मीनस दोबारा फिर रिपीट होएगा। रिपीट करने की लड़ नहीं, सारे जिन्ना आंसर आ चुके उसके उपर बार लगा दो साढ़ा रिपीटिंग ब्लॉक बन जाता है। सानू ये दसना सी भी रिपीटिंग ब्लॉक किन्ने डिजिट्स आ रहे। सवाल तो सिंपल सीगा, थोड़ा डिवीजन करके दिखाई तो उस टाइम लग गया। ठीक है जी, हुण तुसीं यह डिवीजन का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं डिवीजन इरेज करन लगा। आंसर साढ़ा मेन यही सी। हम असी क्वेश्चन देखेंगे 6th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन कुछ नहीं सी, बस जो रिपीट हो रहा वो आप दसना से किन्ने डिजिट्स आ रहे उसके रिपीटिंग ब्लॉक के। जो रिमाइंडर दोबारा 1 आ जाए तो उत्थे रोक देंगे, इट मीनस उस तो बाद फिर दोबारा रिपीट शुरू हो जाएगा। हम अगला क्वेश्चन देखो, मैं थोड़ा शॉर्ट लिखा। लुक एट द सैवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर्स P/Q। सैवरल मतलब मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर देखो तुसी वेयर P and Q आर इंटीजर्स विद द कॉमन फैक्टर अदर दैन 1। असी कुछ उन्होंने एग्जाम्पल लिख के दिखानी है जिन्हों का जोड़ा कॉमन फैक्टर है वेयर P and Q आर इंटीजर्स। P and Q आर इंटीजर्स, P तो Q की है कुछ इंटीजर्स है, दोनों इंटीजर्स है विद नो कॉमन फैक्टर। इन्हों के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, नो कॉमन फैक्टर अदर दैन 1। सिर्फ 1 के टेबल पर जाते P तो Q, आपस में मतलब इन्हों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। एंड हैविंग टर्मीनेटिंग डेसीमल, और इन्हों का जो डेसीमल और टर्मीनेटिंग भी है। मतलब जो असीं इसनूं डिवाइड करांगे तो साडा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। कैन यू गैस वट प्रॉपर्टी Q मस्ट सैटिस्फाई। Q की प्रॉपर्टी की होनी चाहिए जी इसनूं जो इन्होंने कहा सैटिस्फाई कर जे। ये ना कुछ एग्जाम्पल लिख के दिखानियां सी, 2 मैं पहला लिखिया हुई 9/2 16/5, 2 तुहाडे सामने कोई होर लिख दांगा, 3 बहुत है लिख के दिखा ले। तो पहला मैं इसका मतलब दसदा की कहना चाह रहे हैं। साडा P/Q फॉर्म च होना चाहिए एग्जाम्पल जी असीं लिखनी, देखो P/Q फॉर्म च होगी। दूसरा हैविंग टर्मीनेटिंग, पहला इस तो पहले देखो नो कॉमन फैक्टर अदर दैन 1 कि इन्हां दोनों ये दोनों सिर्फ इन्हां दा कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। उस इन्हां दोनों का आपस में इन्हां च कॉमन है कुछ, दोनों किसी टेबल पर जा रहे, दोनों 1 के टेबल पर जा रहे। 5 तो 16 कटिंग हो रही है नहीं हो रही, पॉइंट डेसीमल च आएगा वो गल वक्री। हाँ कॉमन फैक्टर इन्हां च कुछ नहीं है। अगर मैं इतने 9 तो 2 लिख रहा, देखो 9 लिखता 2 लिखता, इन्हां च कॉमन है कुछ नहीं, सिर्फ 1 के टेबल पर जाते। 16 तो 5 में एग्जाम्पल ली है, ये भी 1 के टेबल पर जा रहे, आपस में कटिंग थोड़ी हो रही है इन्हों की। इस लाइन का मतलब ये है वेयर P and Q आर इंटीजर। चलो ठीक है, दोनों इंटीजर है, ये भी मैं 2 एग्जाम्पल लिखी हुई हैं। अदर दैन 1 विद नो कॉमन फैक्टर, इन्हों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, नो कॉमन फैक्टर अदर दैन 1। हाँ अगर है तो 1 तो इलावा और कोई नहीं है कॉमन फैक्टर। हैविंग टर्मीनेटिंग डेसीमल, हाँ टर्मीनेटिंग डेसीमल, अगर मैं 9 ਨੂੰ 2 ने डिवाइड करांगा तो आंसर साढ़ा आंदा 4.5। टर्मीनेटिंग डेसीमल है ना। हम 16 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ डिवाइड करांगे तो की आ जाएगा, इतने करके देख लो। 16 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ डिवाइड करांगे, 5 3 या 15, 1 पॉइंट लग जाएगा 0, 5 2 दा 10, कितना आ गया साढ़ा 3.2। हम कुछ होर एग्जाम्पल लेने, पर उस तो पहले मैं तुम्हें समझा दा भी आज 3 लाइनें लिखिया मैं आंसर के विच, ओहदा मतलब की है। ठीक, ये डिवीजन मैं इरेज कर देना। जो सानू कहना चाह रहे हो उसके मुताबिक असी कुछ एग्जाम्पल लिख के दिखानी। मैं 2 एग्जाम्पल लिखी, 2 हूँ तुहाडे सामने होर लिख दूँगा। मैं P/Q फॉर्म 2 इंटीजर्स ले ले,
और इन्हों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, नो कॉमन फैक्टर अदर दैन 1, 1 तो इलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों की कटिंग नहीं हो रही, दोनों से कुछ कॉमन नहीं है, 1 के टेबल से ही जाते हैं ये भी। तीसरी चीज़, कैन यू गैस वट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सैटिस्फाई, क्यू मीनस नीचे वाला डिनोमीनेटर, यदि प्रॉपर्टी की होनी चाहिए है जोड़ा सैटिस्फाई करेगा साढ़े आंसर में। देखो क्यू इतने साढ़ा है 2, इतने क्यू है 5, उसके कहने का मतलब है भी जो क्यू 2 तो 5 जो साढ़ा क्यू आ डिनोमीनेटर वो ਜਾਂ ਤਾਂ 2 ਹੋਵੇ ਜਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 भी हो सकती है, 2 ਦੀ पावर 2 की होएगा 4, मैं तो लिखता देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो भी साड़ी डेसिमल एक्सपेंशन निकलेगी विल बी पॉसिबल, वो पॉसिबल होएगा जो इन्होंने मंगया वैन डिनोमीनेटर क्यू, जो जोड़ा डिनोमीनेटर क्यू है नीचे वाली इतने 2 तो 5 है ऑफ रैशनल नंबर, जोड़ा रैशनल नंबर है डिनोमीनेटर जो भी है इज़ ईदर ऑफ ਜਾਂ ਤਾਂ 2 ਹੋਵੇ ਜਾਂ 4 ਹੋਵੇ 5 ਹੋਵੇ 8 ਹੋਵੇ 10 ਹੋਵੇ 16 ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਜਾਂ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ n ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ 2 × 5 ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ n ਹੋਵੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਜੋ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਔਰ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ, ਔਰ ਜਾਂ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਂ 2 ਤੇ 5 ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਜੇ, 3 7 ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ मैं तुहानू दसदा, देखो 2 की पावर अगर मैं 1 लिखदा तो की आएगा 2, मैं तो 2 लिखता, अगर 2 की पावर 2 लिख दिए तो 4 आ जाएगा, इतने 4 लिखता, डिनोमीनेटर 4 भी हो सकता। हाँ अगर 2 की पावर 3 लिख देंगे तो की आ जाएगा 8, साफ लिख दिए। अगर 2 की पावर मैं 3 लिखदा तो मेरा आंसर 8 आ जाएगा, मैं 8 भी ऐसे लिख चुके हैं। 2 की पावर जितनी मर्जी लिख दिए, 4 लिख दो 16 आ जाएगा, 5 लिख दो 32 आ जाएगा, ठीक है, 6 लिख दो 64, इतना चलता जाएगा। इसी तरह 5 का भी चल जाएगा, 5 की है 5 की पावर 1 होएगी तो 5 आ जाएगा, 5 में इतने लिख चुके हैं 2 4 5, 5 की पावर 2 लिख दो तो 25 आ जाएगा, मैं इतने 25 भी लिख देना, ठीक 25 भी चल जाएगा, इन्हें लिख के दिखाने की लोड़ नहीं, 16 तक लिख के एंड सो ऑन लिख दो। ਹੁਣ देखो 10 क्यों लिया, 10 ना तो 2 की पावर च आंदा ना 5 दे, 10 आंदा दोनों के टेबल से। देखो 10 किस तरह आ रहा, 2 × 5 पावर 1 लिख लो, की आ जाएगा 10, हम 2 × 5 पावर 2, 5 टू द 10, 10 का स्केयर 100, 100 भी हो सकता, ठीक। ये तो हो गया थोड़ा डिटेल च, तुहानू शॉर्टकट भी दस दिए भी जो भी साड़ा डिनोमीनेटर है ना वो ਜਾਂ ਤਾਂ 2 के टेबल से कट रहा होवे ਜਾਂ 5 के टेबल से, ਜਾਂ 2 ਤੇ 5 दोनों इकट्ठियां ते कट रहा हो, ठीक है। डिनोमीनेटर हम कोई भी एग्जाम्पल है, मैं 2 लेती हैं तुहानू, उन्होंने एग्जाम्पल्स लिखने गया सी कितनी है नहीं पता, आप 3 या 4 लिख दी अच्छा रहेगा। ऊपर जो मर्जी लिख लो, चलो इस बार कुछ क्या लिखी थी 19 ले लो, चलो कुछ भी लै सकते हो तुसी, नीचे ध्यान ना लेना, नीचे वो चीज़ लईए भी जो 2 के टेबल से आ रही होवे, 2 के टेबल से मीनस 2 की पावर च आ रही होवे, 6 ना लिख दो, 6 2 के टेबल से तो आंदा, बट ये 6 के फैक्टर होंगे 2 × 3, 3 नहीं होना चाहिए, 2 या 5 चल जाएगा। जो भी डिनोमीनेटर लेना ना वो जो प्राइम फैक्टर बना के देख लो, और 2 या 5 भी आना चाहिए, पावर जिनी मर्जी आ जाए चलेगा, 3 7 कुछ और नंबर एक्स्ट्रा अदर दैन 2 एंड 5 होना नहीं चाहिए फैक्टर उसका। फिर आप अपने मतलब कोई की लिखिए 10 लिख लिए इस बार, ठीक है। इनू असी डिवाइड करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन की है 1.9 और टर्मिनेटिंग डेसिमल बन गया। और ले लो एक एग्जाम्पल, थोड़ी बड़ी ले ली इस बार एग्जाम्पल, तुहानू समझ आ जाएगा। ऊपर जो मर्जी ले लो 25, नीचे मैं इस तरह की रकम लेना चाहता भी 5 तो 2 के टेबल से, 4 5 का 20 होंगे ना, तो मैं 20 ले लेना इस बार, थोड़ी बड़ी रकम ले ली 20। हुण जो मेरा डिनोमीनेटर 20 है ना, इसके जो मैं प्राइम फैक्टर कराँगा, देखो 20 से प्राइम फैक्टर करके दिखाना तुहानू, 2 से गया 10 5, देखो इसका डिनोमीनेटर की बनया 2 की पावर जो मर्जी हो 2 आ रही कोई चक्कर नहीं, 5 आ रहा, 5 की पावर 1 मीनस जो डिनोमीनेटर होगा ना इस तरह होना चाहिए, 2 की पावर कुछ भी हो जाए या 5 की पावर कुछ भी हो सकती है, ठीक। हाँ 3 7 और कुछ नहीं आना चाहिए, 2 तो 5 तो कुछ अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। इकल्ला 2 आएगा तो भी चल जाएगा, इकल्ला 5 भी आ रहा है प्राइम फैक्टर तो भी चलेगा, दोनों आ रहे इकट्ठे 2 तो 5 पावर जिनी मर्जी हो दोनों की तो भी चलेगा, बट 2 तो 5 तो इलावा कोई तीसरा अक्षर नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए
4 ले लो, 7 नहीं होना चाहिए, ठीक। उस तो इलावा होर 11 जो भी है, समझ गए तुसीं। हुण इस नूं तुसीं डिवाइड करोगे टर्मिनेटिंग डेसीमल ही बनेगा। मैं डिवाइड करके दिखा देना तुहानूं। 25 नूं 20 नाल डिवाइड करेंगे, 1 ते गया 25 आ गया, इत्थे लगा पॉइंट, इत्थे लगे 0, 4 ते गया नहीं 2 ते गया 40, 10 आ गया, पॉइंट तो लगे होएगा, 0 लग जाएगी, 1.25, ठीक। ये वाली लाइन 16 तक लिख लो, तो ठीक रहेगा। 3 डॉट ला दो अगे, एंड सो ऑन भी लिख सकते हो। हुण क्वेश्चन क्लीयर हो गया। लुक एट सैवरल एग्जाम्पल्स। असीं आ 4 एग्जाम्पल्स लिख लिया, इन्हां वल देखिया। रैशनल नंबर है P/Q, ठीक है, सारे बटे च है, P/Q की फॉर्म च है। अगला फिर P एंड Q आर इंटीजर, इंटीजर ही है, 9 भी इंटीजर होंदा, 2 भी, ये चारों फ्रैक्शन इंटीजर्स है विद नो कॉमन फैक्टर। उन्होंने विच कोई 9 आ जां नंबर ऑफ है, मैं रकम दोबारा देख ला। हाँ, नो कॉमन फैक्टर, डॉट लगाया सी इन्होंने, नो कॉमन फैक्टर अदर दैन 1। इन्होंने विच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक तो इलावा। ये दोनों आपस में P ते Q दे विच कोई कॉमन फैक्टर किसी टेबल ते जाते नहीं, ये भी नहीं जाते किसी टेबल ते, एक दे टेबल ते जाते हैं, ये भी एक दे टेबल ते जाते, इसी करके आप इन्होंने डेसीमल च कढ़िया। कॉमन फैक्टर एक तो जिदा मैं अद्धा लिखदा एग्जाम्पल 8/2, इन्हें कॉमन फैक्टर है ना 4 लिख दो, चलो या 6 ले लो, चल 4 ही ले लो। हुण इस तो कॉमन फैक्टर है 2, 4 2 दा 2, दोनों 2 के टेबल से आते, इदा नहीं सी असी फ्रैक्शन लिखनी, असी वो फ्रैक्शन लिखनी जिहड़े आपस कटिंग नहीं हो रही, पॉइंटां 'च आंसर आवे डेसीमल च, ठीक है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसीमल, और जदों असी उहनूं डिवाइड करांगे डिनोमीनेटर नाल तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, जिद्दां मैं तुहानूं पूरा नहीं किया, इसका रिमाइंडर 0 आ गया सी। 25 नूं 20 नाल डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया, डेसीमल भी निकल गया, टर्मिनेटिंग डेसीमल होना चाहिए, ये भी हो गया साडा। तो सी वट प्रॉपर्टी Q मस्ट सैटिस्फाई, Q की प्रॉपर्टी की होनी चाहिए है, वो है ए वाली लाइन, टर्मिनेटिंग डेसीमल एक्सपेंशन विल बी पॉसीबल। ये कदों होएगी पॉसीबल, जो उन्होंने मंगया वैन डिनोमीनेटर जिहड़ा है ना रैशनल नंबर, ये वाले रैशनल नंबर का चारां का, इज ईदर ऑफ द फॉर्म, डिनोमीनेटर जां तो 2 लिखा होवे, जां 4 लिखा होवे, जां 5 8 10 16, जां भी लिख सकते हैं, जां इदां भी लिख सकते हैं, डिनोमीनेटर मस्ट बी इन द पावर ऑफ 2 और 5 फॉर बोथ 2 and 4 5, जां दोनों की पावर होवे जां कल्ले 2 की पावर होवे। हाँ लाइन भी लिख सकते हैं तुसीं, ठीक है। आई होप तुहानूं क्लीयर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है जी। हुण असीं अगले क्वेश्चन करांगे आपां। हाँ जी बच्चों, हुण असीं करांगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 8 ते 9th भी कर लेंगे, आज ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। देखो क्वेश्चन 7 सिंपल है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग। आप 3 नंबर लिखने हैं जिन्हों की डेसीमल एक्सपेंशन मतलब उन्होंने डेसीमल च लिखना है और नॉन टर्मिनेटिंग हो, रिमाइंडर 0 ना आ रहा हो, नाल ही नॉन रिक्यूरिंग मीनस नॉन रिपीटिंग हो, रिपीट भी नहीं होना चाहिए। सिंपल है, तुहानूं दसांगा मैं, तुसीं उन्होंने याद रख लो, तुहाडे बहुत काम आएगा वाला मैथड। रिक्वायर्ड 3 नंबर्स आर, जो सानूं 3 नंबर चाहिए जो उन्होंने पूछे है, द रिक्वायर्ड 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग आर, ये पूरी लाइन लिख के फिर आर लिखना, मैं शॉर्ट फॉर्म च लिख लिया, लिख रहा है रिक्वायर्ड 3 नंबर्स आर, कोई भी ले लो, 0.4110 4120 4130 4140 41 3 डॉट ला दिए ना, इट मीन्स भी कंटिन्यू चल रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर 3 डॉट लाते तो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, पर उन्होंने नॉन टर्मिनेटिंग के नाल कहते भी नंबर जोड़ा है नॉन रिक्यूरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए, मतलब ऊपर आप लाइन नहीं लगानी, रिपीटिंग नहीं होना चाहिए, रिक्यूरिंग नहीं होना चाहिए, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन रिक्यूरिंग नॉन रिपीटिंग है, ये इरेशनल नंबर होंगे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग मीनस इरेशनल नंबर पूछ रहे सानू, इरेशनल नंबर लिखने का तरीका है बहुत वधिया, तुसीं इसनूं याद कर सकते हो। होर भी मैथड होंगे, आ सिंपल होंगे, और कोई ले लो, 45 ले लो 10 45 20 बहुत है, 3 डॉट ला देने आप, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर हो गया, 3 लिखने से 1 रह गया, तुसीं लिख सकते हो 64 लिख दो,
ठीक है जी, 3 नंबर हो गया आराम ना। नॉन टर्मिनेटिंग है, 3 डॉट लगाने का मतलब है भी कंटिन्यू चली जा रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। और नॉन रिपीटिंग के ऊपर लाइन भी नहीं लगी, नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग नॉन रिक्यूरिंग सेम मतलब है। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਫਾਈਂਡ 3 ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੀਸਰੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ, ਇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ। ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਿਵਾਈਡ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। 5 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ, 9 ਨੂੰ 11 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 0.81 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 11 तो 0 ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਛੋਟਾ पॉइंट लग जाएगा इतने 0 8 ਤੇ ਜਾਏਗਾ 88, रिमाइंडर 2 आ गया, 0 लग जाएगी, पॉइंट लगा हुआ 1 ਤੇ गया 11 9 रिमाइंडर आ गया। देखो दोबारा 9 आ गया रिमाइंडर। ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨॉन ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। बट रिपीट तो हो रहा है ना, ऊपर रिपीट वाली लाइन लगा दो। रिपीट वाली लाइन में पहले लिखा हुआ है, देखो नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग सीगे, बट ये रिपीटिंग नहीं सी, ये रिपीटिंग है। अगर रिपीटिंग आ रहा है ना, इट मीनस ये रैशनल नंबर है। जिसके उपर बार लगी होंगी ना पूरे ते डेसिमल तो बाद जिन्ने डिजिट सब तो बार लगी होवे, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ नॉन रिपीटिंग ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ नॉन टर्मिनेटिंग ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, बट रिपीटिंग ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ काउंट करते हैं, इरेशनल की कैटेगरी च नहीं काउंट करेंगे। ये रैशनल नंबर है, ठीक। इसी करके उसने इस क्वेश्चन गया सी नॉन टर्मिनेटिंग तो ठीक है, बट नॉन रिपीटिंग होने चाहिए, इस करके रिपीट का निशान आएगा ही नहीं इत्थे। हुण आपां फाइंड करने इदां दे इरेशनल नंबर, इन्हां दोनों दे विच इरेशनल नंबर वो किदां निकलेगा, यही वाला मैथड लगावांगे। देखो ये 2 डिजिट है तो इसके पहले 2 डिजिट चेक करेंगे। 71 तो बड़ा कोई भी लिख दो, सो 3 इरेशनल, थोड़ा ऊपर लिख देना, 9/11 का ऐसे साढ़ा 0.81 ऊपर बार। नाउ 3 इरेशनल numbers between 5/7 and 9/11। 3 इरेशनल नंबर लिखने तो अपन पॉइंट विच ही लिखना पेगा इस फॉर्म। देखो 0.71 लवांगे ना, पहला 0.71 है, 71 तो ग्रेटर लेना, 81 तो छोटा लेना, इन्होंने दोनों के बीच बीच लिखने हैं। 71 तो ग्रेटर क्या होगा, 7210, ये बन गया एक इरेशनल नंबर। 71 तो ग्रेटर है ना, इन्होंने दोनों के बिटवीन लिखना है, ये नहीं होना चाहिए, 81 नहीं होना चाहिए, इन्हें बीच वाला कोई भी लिख दो। 71 तो 2 हो गया, हूँ 76 ले लो। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता एग्जाम बच्चे, चलो दस दें 1 मिनट। तीसरा नंबर 80 भी ले सकते हैं, पर 81 तो छोटा लेना, 80 की बजाय आप 79 ले लेंगे। 3 नंबर गया सी, कोई भी ले लो। ठीक है, असी 3 नंबर फाइंड कर लिया इन्होंने बीच, और इरेशनल है। मिसटेक कितने होंगी बच्चे तो इस तरह लिखा होंगे, फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। बच्चे काली काली इरेशनल वाल इन्ना ध्यान नहीं देंगे, इतने रैशनल वाल ध्यान चल जाता, रैशनल वाल तो काली काली च बच्चे जिदा आप 1.1 च रैशनल नंबर फाइंड किए उसी तरह ही कर देंगे। ध्यान रखना, रकम को ध्यान ना पढ़ना, इतने इरेशनल लिखा हुआ, इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है जी। कई बार बच्चे इन्हू काली काली च पढ़ते हैं, रैशनल ही समझ लेंगे, और जिदा डिनोमीनेटर सेम करके जिदा आप 1.1 की उस तरह कर लग जाते। ध्यान रखना, रकम को बड़े ध्यान ना पढ़ना होंगे। हुण लास्ट क्वेश्चन 9th है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, 9th क्वेश्चन करन लगे आप। बच्चे मिसटेक करते इस तरह, तो मैं तुहानूं दस्सिया, सारे नहीं करते। क्लासीफाई करना असी बाय द फॉलोइंग एज रैशनल,
और ई रैशनल दसना भी रैशनल ਜਾਂ ई रैशनल। पहला पार्ट है साडा, पहला मैं सारे लिख देवां फिर तुहानूं इकट्ठे दस देंगे। थर्ड पार्ट फिफ्थ पार्ट रह गया इत्थे, ये फिफ्थ ही सी, थर्ड अच्छा फोर्थ सी और ये फिफ्थ सी। थर्ड पार्ट मैं नहीं लिखा, थर्ड इत्थे लिख दिन्ने 0.3796। ठीक है जी, देखो बड़ा इजी हो गया। पहले तो इत्थे आ जाओ, इन देख के साफ पता लग रहा है ई रैशनल नंबर है, इस तरह के है ना, पिछे 3 डॉट्स भी आ रहे हैं तो 1 0 1 2 0 1 3 0 1 4 0, ये साड़ा सीधा की हो गया ई रैशनल नंबर। और इत्थे आ जाओ, ये भी 3 डॉट है पिछे, ये भी टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा, रिपीटिंग भी नहीं है, इस तरह की बन गई। ठीक है जी, आई एग्जाम्पल तुम इत्थे भी लिख सकते सी, ये वाली इत्थे भी लिख सकते सी। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा, ये भी ई रैशनल हो गया। 23 भी ई रैशनल है, पहले दस दें। देखो हूँ पुठे चल रहे हैं, इधरों चलते हैं, ये पिछले 3 डॉट्स नहीं लिखे हुए, इट मीन से पूरा पूरा रिमाइंडर आ गया होगा, 0 इतने तक कंप्लीट हो गया होगा। पिछे अगर कुछ नहीं ना लिखा डॉट तो इट मीन से टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ये रैशनल नंबर है। रैशनल लिख देंगे, नंबर लिखने की लोड़ नहीं ना। 2 to 5 किसका स्केयर होंगे, इसका स्केयर रूट आता 15, 15 का स्केयर होंगे 2 to 5, तो ये भी साढ़ा 15 की है, रैशनल नंबर है। और रूट 23 की है, इसके तो रूट जो बाहर निकलती नहीं रकम पॉइंटा च आएगी, और ई रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है जी, इन्हें आप कहेंगे ई रैशनल। ये साड़ी एक्सरसाइज 9 क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 1.3 का इतने साड़ी 1.3 पूरी कंप्लीट होंगी है। तो जोड़े बच्चे नवे आए हैं चैनल पर, वो चैनल लाइक तो सबसक्राइब जरूर करना जी। तो आई होप तुहानू समझ आ गया होएगा। ठीक है, आज याद रखना है 8th क्वेश्चन में दसिया इसका इंपोर्टेंट है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन किहड़े 1.3 दे, 3rd क्वेश्चन तो 4th क्वेश्चन तो नाल अपना 8th क्वेश्चन। 3rd 4th 8th क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्होंने बहुत ध्यान ना देखना। तुसीं करने तो सारे होंगे पर इन्होंने थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। थैंक यू जी।